Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta-vrinda. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Govinanda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavinda. So as we approach the auspicious time of the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, जिस प्रकार हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि का पास आ रहे हैं so wanting to look at some of his pastimes. तो हम लोग उस महाप्रभु के उस कुछ लीला के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करने के लिए प्रयास करेंगे। Just like Lord Krishna's childhood Leela in Mathura. जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हुआ है मथुरा में, Actually not Mathura but Braja. Lord Krishna came to Braja for the first part of his childhood Leela. असल में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव हुआ है ब्रज में। So there was Kumar, there was Oganda, and there was Kaishora. तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कुमार, गोगंड और कैश्वर लीला है। Lord Krishna's, usually Kumar is the first 5 years. तो साधारणतः जो कुमार लीला है वो पहला 5 साल की लीला है। But Lord Krishna's, his Leela was very short. It was only 3 years and 4 months. लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है बहुत ही छोटा है। वो केवल 3 साल और कुछ महीना तक था वो So समय। he finished the Kumar stage. It was only 3 years and 4 months. तो भगवान श्री कृष्ण उनके जो कुमार लीला है वो भगवान समाप्त किए केवल 3 साल 4 महीने में। Then he went to the Oganda. फिर भगवान श्री कृष्ण पौगंड लीला में प्रवेश किए Another 3 years and 4 months. और 3 साल 4 महीना And then finally Kishore. और फिर अंत में कैश्वर लीला। So when Krishna went to Mathura, by the time he's going to Mathura with Akrura, he was 11 years old. तो जब तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए अक्रूर के साथ, तब तक भगवान श्री कृष्ण का केवल 11 साल ही हुआ था। So here we have Lord Chaitanya. तो यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम And लोग Lord चर्चा करते हैं। Chaitanya also had his childhood Leela, और चैतन्य महाप्रभु के भी बाल लीला है। staying at home with Mother Sanchi. तो सची माता के पुत्र के रूप में The different pastimes took place there in the home of Jagannath Mishra and Sachi Mata. तो जगन्नाथ मिश्रा सची माता के घर में वो वहाँ पर दूसरा लीला हुआ था। Lord, just like Lord Krishna, when he was a child, he would eat dirt. So you see Chaitanya Mahaprabhu also eating dirt. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला में वो मिट्टी खाए थे, उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी मिट्टी खाए थे। Mother Sachi wanted to know why you're eating dirt. I've given you sweets and rice. Why you're eating dirt? तो सची माता निमाई को पूछने लगे कि हाँ, मैंने आपको अलग अन्न दिया है खाने के लिए, आप मिट्टी क्यों खा रहे हो? So, he said, Lord Chaitanya said, well, the food you've given me, rice and sweets and things, they're all coming from the earth. The food grows from the earth, the grains grow from the earth. I'm eating the earth
and you're giving me things which come from the earth. What's the difference? तो सच्ची निमाई कहने लगे कि जो अन्न आप हमें दे रहे हैं ये मिट्टी से आ रहा है और मैं मिट्टी खा रहा हूँ, तो मिट्टी खाना और अन्न खाने में क्या फर्क है? Right? We often hear this kind of philosophy. तो हम लोग बहुत बार इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग अलग अलग जगह से सुनते हैं। It's all one. तो वहाँ पर बताया जाता है कि सब कुछ एक है। Lord Shiva, you are Ganesh, you are Brahma, you are Vishnu. तो कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग भगवान हैं, आप ही गणेश हैं, आप ही शिव हैं, सब एक है। It's all one, right? तो सच है कि आप सब लोग एक हैं, सही है क्या ये? Is it? No. Are you sure? Thinking about it. क्या आप निश्चित हैं कि सही है? सब कुछ एक नहीं है? So mother said, she said to Nimai, she said, when you eat dirt, you get sick, not good for your health. But if you eat the rice and the sweets, that's good for you. You'll get strength, your body will be nourished. तो सची माता कहने लगी कि जब आप मिट्टी खाते हो तब आप बीमार पड़ जाते हो, लेकिन जब उसी मिट्टी से बना हुआ जो अन्न अगर आप खाते हो तो फिर क्या होता है, आपको शरीर में शक्ति प्राप्त होता है। There's a difference. तो दोनों में काफी फर्क है। Right? If you pour the water onto the earth, onto a lump of mud, be useless. The water will just be absorbed in the earth. तो अगर आप किसी मिट्टी के ढेला में पानी डाल देते हो तो वो पानी सब इधर उधर चला जाता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता है। But if you use the earth to make a pot, make a nice clay pot, then you can put the water and store the water in the pot. लेकिन उसी मिट्टी से अगर आप घड़ा बनाते हो, कलश बनाते हो, तो उसमें आप पानी भर सकते हो। So it's not all one. तो इससे समझ सकते हैं कि दोनों एक नहीं है। So Lord Chaitanya Nimai, when he heard Mother Sachi explain this, he said, "Oh, thank you, Mother." He said, "If I had known this before, I would not eat dirt." तो जब निमाई सच्ची माता से इस प्रकार श्रवण किया तो तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मेरे को ये पहले पता होता तो मैं मिट्टी नहीं खाता। Now I know I'm much better. I should eat the food you give me. Why I should bother to eat the dirt? तो फिर निमाई ने कहा कि अभी हमें इससे अच्छा तत्व हमें जानकारी मिला है, तो अभी से मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा और जो आप खिलाओगे मैं वही खाने वाला हूँ। So Nimai was, in his childhood, in his Bala Lila, he was talking like this. तो निमाई उनके बाल लीला में इस प्रकार बात कर रहे थे। And of course, he was chanting the holy name. और निमाई जो है वो एक और हरिनाम कर रहे थे। As a child, he would cry until the ladies would chant the holy name. तो जब निमाई छोटे अवस्था में थे तो वो रोते थे, जब तक लोग हरिनाम नहीं करते, जितने भी स्त्रियां हरिनाम नहीं करती, तब तक वो रोना बंद नहीं करते थे। And then Poganda Lila came and he began his studies. और जब वही पोगंड लीला शुरू हुआ तब निमाई जो है चैतन्य महाप्रभु वो अपना विद्या का विलास, Because he is born in a Brahmana family. तो क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे, And the duty of the Brahmanas to study scriptures. तो ब्राह्मण का कर्तव्य है शास्त्रों का अध्ययन करना। Sometimes somebody asks me, why did Mahaprabhu have to be a scholar? Why did he study? तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि महाप्रभु उनको क्यों इस पांडित्य दिखाना पड़ा। But it's the duty of the Brahmanas to study. लेकिन ये ब्राह्मण की धर्म है शास्त्र की अध्ययन करना, Study Shastra and teach the Shastra. शास्त्र का पठन करना और शास्त्र का शिक्षण करना, Worship the deities and teach others to worship और the deities. श्री विग्रह की पूजा करना और
और शिव विग्रह की पूजा दूसरे को सिखाना। So Mahaprabhu was born in the Brahmana family, so he was doing these things. तो महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और ये सभी कार्य चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। And then come to Keshor Lila. तो जब कैशोर लीला में महाप्रभु प्रवेश करते हैं, So again, he's continuing his studies. और फिर महाप्रभु अपना जो पढ़ाई है वो करते रहे And he began to travel. और वो भ्रमण करने लगे And he began to the Sankirtan movement. और फिर उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट का, संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत किया। So we'll read a little bit about Lord Chaitanya here from the Chaitanya Charitamrita. तो हम लोग यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से कुछ हम लोग श्रवण करेंगे। Kripa Shuddha Sharidyasya Vishwam Apalavayanti Api Nicha Gaiva Sadapati Tam Chaitanya Prabhum Bhaje. I worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose nectarian mercy flows like a great river, inundating the entire universe. Just as a river flows downstream, Lord Chaitanya especially extends himself to the fallen. This verse is describing the mercy of Lord Chaitanya. तो ये जो श्लोक है, ये चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा है उसका वर्णन करता है। Just like the river flows, and wherever it flows, it inundates the land, it brings purification to that place. तो जिस प्रकार नदी किसी स्थानों पे प्रवाहित होता है, तो नदी उस स्थान पे पवित्रता लाती है। And the river flows downstream, comes down the mountains, flows down to the sea. तो जो नदी है वो पर्वत से प्रवाहित होता है और समुद्र के तरफ, नीचे की तरफ बहने लगती है। In the same way, Lord Chaitanya gives himself to the fallen soul. उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा है वो पतित जीवों के ऊपर कर रहे हैं। Right? Mayapur is Odarya Dham. तो मायापुर जो है ये औदार्य धाम है। Right? Vrindavan, Madhurya Dham. वृंदावन माधुर्य धाम है। Dwarka, Aishwarya Dham. द्वारका ऐश्वर्य धाम है। But Mayapur, Odarya Dham. लेकिन मायापुर जो है ये औदार्य धाम है। Place of the greatest mercy. तो जो स्थान है वो सबसे ज्यादा करुणा का स्थान है। So Mahaprabhu has come, is Mahabhadanaya avatar, the savior of the fallen souls. तो महाप्रभु जो है महावदान्य अवतार है, वो पतित जीवों के उद्धारक है। In Kali Yuga, especially the present time, there's a lot of fallen souls. तो कली युग जो है विशेष करके अभी के परिस्थिति में बहुत पतित जीव है। So Mahaprabhu has come to deliver them, to save them. तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं इन सबको उद्धार करने के लिए। But you have to be sincere. लेकिन आपको बहुत निष्ठावान होना पड़ेगा महाप्रभु की कृपा प्राप्त You करने। have to want to be saved. तो आपको इस पतित अवस्था से उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। We have to be very serious. तो हमें बहुत ही दृढ़ होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। And then Lord Chaitanya will help us. तभी चैतन्य महाप्रभु आपको सहायता करेंगे। This morning we were reading a verse from the Chaitanya Charitamrita. तो आज सुबह हम लोग चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे थे। And it describes that what is a very easy thing becomes very difficult without the mercy of Lord Chaitanya. तो हम लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार सबसे आसान जो कार्य है वो सबसे दुष्कर हो जाता है But चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना। by the mercy of Lord Chaitanya,
even a difficult thing becomes very easy. लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सबसे दुष्कर कार्य आसान हो जाता है, सुकर हो जाता है। Prabhupada gives an example about what's very easy. He said it's very easy to understand that life comes from life. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत आसान है किस प्रकार जो प्राण और एक प्राण से आता है। But Kali Yuga people are so foolish, they're so unintelligent, that even though they're educated as scientists, they cannot understand this. तो लेकिन कलि युग में लोग इतने मूर्ख हैं, वो ये जो आसान एक सत्य है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। There are many scientists that are trying to understand where is life coming from. तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं परीक्षा करने के लिए कि जो प्राण शक्ति है इसका उद्भव कहाँ से होता है। But it's very easy for a devotee to understand. लेकिन एक भक्त जो है बहुत आसानी से वो समझ जाता है इसका तत्व। And so here we have the example in the Kali Yuga, fallen souls, how can they be saved? तो यहाँ पर एक तत्व विचार किया गया है कि जो बद्ध जीव है उसका उद्धार कैसे हो सकता है। By the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they can be delivered. चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही उनका उद्धार हो सकता है। And the example is Jagai and Madhai. और उनका आसान उदाहरण है जगाई और माधाई। But they were very fallen, तो दोनों बहुत ही गिरे हुए थे, but they were delivered by the लेकिन mercy of लेकिन God. उनका भी उद्धार हुआ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। So the Sankirtan movement is like a big river तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है एक नदी के जैसा है, flooding the whole world. जो पूरे पृथ्वी को प्लावित कर रहा है। So fallen souls from all over the world are being saved. जो पतित जीव जो है पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं, उनकी उद्धार हो रहा है। We could see coming to Calcutta, there's a lot of fallen souls here. तो हम लोग कोलकाता में आ रहे थे और हम लोग देखा कि कोलकाता में बहुत सारे पतित जीव हैं। I could see so many signs, bah. They're selling alcohol. तो हम देख सकते हैं, हम आ रहे थे तो अब देख रहे थे कि रास्ते के दोनों ओर कितने सारे बार हैं और जहाँ पर वो दारू बेचा जा रहा है। I could tell it's become a fashion here in Calcutta. तो कोलकाता में एक बहुत सुंदर एक फैशन हो गया है दारू पीने का। People are all taking to this Western culture. तो लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है उसको स्वीकार कर रहे हैं। The culture of fallen souls. तो पाश्चात्य देश का संस्कृति क्या है ना, पतितों का संस्कृति है। We say the blind follow the blind. तो ऐसे बताया जाता है कि अंधा दूसरे अंधा का पीछा करता है। Yes, the blind man follows another blind man. You cannot expect to get a good destination. तो अगर एक अंधा व्यक्ति और एक अंधे व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है तो आप आशा नहीं कर सकते कि उसका जो गंतव्य है वो बहुत अच्छा होगा। So Lord Chaitanya has come in the Kali Yuga just to reclaim the fallen souls. तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं केवल एक कारण के लिए कि उस पतित जीवों का उद्धार करे, To bring them out of their ignorant condition and bring them to the standard of proper civilized people. तो उनको उस अज्ञानमय पतित अवस्था से निकालकर उनको एक सही आध्यात्मिक स्थिति में रखा जाए। The human life is rarely achieved. तो मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। And of course you're thinking, well, no, there's so many people here in Calcutta. तो आप सोच सकते हैं नहीं, इधर तो बहुत सारे मनुष्य हैं, But there's so many more other living entities. लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या जो है दूसरे प्रजातियों का है। There's so many mosquitoes. लेकिन आप अगर देखेंगे तो हजारों करोड़ों उधर मच्छर है, There's so many flies. There's so many birds. There's so many trees. इतने सारे प्रकार के हाँ पक्षी हैं, पेड़ हैं,
So many other living entities are there, not only human. तो केवल मनुष्य नहीं है, उस बहुत सारे प्रकार के दूसरे प्रजाति के जीव हैं। Human life is special because the human life is meant for self-realization. मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। You come to the human life, we're meant to use this human life for a higher purpose. तो मनुष्य जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य है, But in the ignorance, blinded by ignorance, we become absorbed in just satisfying the senses. लेकिन अज्ञान में अंधा होकर हम लोग इंद्रियों को खुश करने के लिए भाग रहे हैं। Smoking and drinking, gambling, नशा करना, जुआ खेलना, मदिरा पीना, meat eating, मांसाहार करना, all of these things have become standard activities. तो ये सारे जो कार्यकलाप है कली युग का स्टैंडर्ड बन गया है। So when people engage in these activities, then they're blind to the purpose of life. तो जब व्यक्ति इस चार कार्यकलाप में फंस जाता है, तब वो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में अंधा हो जाता है। And they cannot expect to get any good destination. तो आप कभी भी आशा नहीं कर सकते कि उनका गंतव्य अच्छा होगा। So Chaitanya Mahaprabhu came to deliver the fallen soul. तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही पतित जीवों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। He came to show all of us how to get out of that ignorant condition. तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें समझाने के लिए कैसे आप इस बद्ध अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। And it begins by chanting the holy name. और इसका शुरुआत होता है हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा। So that our Krishna conscious society is working, trying all over the world to bring people out of that ignorant condition. तो ये जो अंतर्यामी कृष्ण भावनामृत संघ जो है, हरे कृष्ण आंदोलन है, इसी मुद्दे पर कार्य कर रहा है। So Lord Chaitanya, both the goddess of fortune and the goddess of learning worship Lord Chaitanya. तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इनकी आराधना जो है वो सरस्वती भी कर रही हैं और लक्ष्मी देवी भी कर रही है। The goddess of learning, Saraswati, she worshipped him when he was victorious over the scholar who had conquered all the world. तो सरस्वती देवी चैतन्य महाप्रभु के पूजा आराधना कर रहे थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक विश्व विजेता तार्किक उन पर विजय प्राप्त किए थे। This is referring to the pastime of Keshav Kashmiri. There was this one great pandit from Kashmir, Keshav Kashmiri. He was Digvijay. He was going everywhere challenging people to debate. तो ये जो लीला है, ये लीला उस लीला के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर एक बहुत दिग्विजयी पंडित था जिनका नाम है केशव काश्मीरी, और वो कश्मीर प्रदेश से पूरे विश्व भर भ्रमण करके सबको परास्त कर रहे थे। And he came to Navadvip because Navadvip was an important place of learning. तो वो घूमते घूमते नवद्वीप में आए थे क्योंकि नवद्वीप उस समय शिक्षा का प्रधान केंद्र था। There were many pandits there. तो वहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग निवास करते थे। But when they heard Keshav Kashmiri is coming, they all became afraid. They all said, "Oh, I have to go home." I'll come back after some. लेकिन जब उनको पता चला कि केशव काश्मीरी आ रहे हैं नवद्वीप में, तब सब लोग भाग गए और उन्हें कहा कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, वापस थोड़ी देर बाद आता हूँ। They did not want to have to meet Keshav Kashmiri because they thought, if I meet him and he defeats me, then my business will be ruined. तो वो सोच रहे थे कि अगर मैं केशव काश्मीरी का सामना किया
तो मैं उधर परास्त हो जाऊंगा और फिर मेरा जो व्यापार है वो खत्म हो जाएगा। So they all were afraid to meet him. But Nimai was a young man, he was still a teenager, and he had his own school, he had his own students. तो सब लोग भाग गए, लेकिन निमाय जो है वो उस समय केवल वो बालक था, और वो उनकी अपना टोल था, स्कूल था, लेकिन और अपने छात्र थे, लेकिन निमाय बहुत आसानी से उनसे मिला। So he met with this Keshav Kashmiri. उन्होंने केशव कश्मीरी का सामना किया। And Keshav Kashmiri then said to Nimai that, oh, we should debate. तो केशव कश्मीरी तब निमाय को कहा कि हमको तर्क युद्ध करना है। But Nimai said, oh, you're a great scholar, I'm just a young boy, I don't know anything. लेकिन निमाय ने कहा कि आप एक बहुत महान दिग्विजयी पंडित हैं, और मैं एक साधारण बालक हूँ, मैं कैसे आपके साथ तर्क युद्ध कर सकता हूँ। So as Keshav Kashmiri, he was a great devotee of the goddess Saraswati. तो केशव कश्मीरी जो है एक महान भक्त थे सरस्वती देवी के। And by the blessings of Mother Saraswati, he conquered everywhere. तो सरस्वती माता के आशीर्वाद से केशव कश्मीरी पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर किया। And he came to Navadvip and he met with Nimai Pandit. और फिर वो नवद्वीप में आए और निमाय पंडित से मिले। And Nimai Pandit requested him, please compose some poetry about Mother Ganga. और निमाय पंडित ने उनको निवेदन किया कि आप गंगा के ऊपर कुछ पद्य लिखिए। So he began to recite poetry about Mother Ganga. और फिर केशव कश्मीरी गंगा मैया के ऊपर कुछ पद्य लिखने लगे। One verse after another, spontaneously he began to recite poem praising Mother Ganga. तो एक के बाद एक वो श्लोक सृष्टि करने लगे, गंगा की गुण कीर्तन करते हुए। And he composed about 100 verses. और वो बहुत कम समय में 100 श्लोक रचना कर दिए। And he composed them just like the wind. In other words, it was so spontaneous, so quick. तो वो इतने स्वाभाविक रूप से इस श्लोकों का रचना किए, जैसे वायु प्रवाहित होता है बहुत जल्दी। So Nimai said to him, oh, you're a great poet. You've composed so many verses. तो श्री चैतन्य महाप्रभु तब उनको कहा कि आप एक महान कवि हैं और आपने इतने सारे श्लोकों का रचना किए। But Nimai said, you know, there's some faults in your poetry also. लेकिन आपके कविता में, आपके रचना में थोड़ा कुछ त्रुटि है। And Keshav Kashmiri said, no, there are no faults in my poetry. लेकिन केशव कश्मीरी ने कहा कि मेरे रचना में कोई त्रुटि नहीं हो सकता। But Nimai said, no, there are faults. लेकिन निमाय ने कहा कि आपके रचना में त्रुटि है। And Nimai quoted one of the verses. तो निमाय ने कुछ श्लोक का उल्लेख किया। So Keshav Kashmiri was surprised. He said, I composed this poetry like the wind. How could you remember one of the verses? तो केशव कश्मीरी जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं जो इस श्लोक का रचना किया एक तूफान के जैसा, आप कैसे कुछ विशेष श्लोक को आप पकड़ पाए? So Nimai said, well, the Lord gave you a power that you could compose the poetry. He gave me the power, I could remember the poetry. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिनकी कृपा से आप इतने सारे श्लोकों का रचना किया है, उनकी कृपा से ही मैंने वो सारे श्लोक को याद कर पाया। And so Nimai then told him, he said, in this one verse, there are 5 ornaments, good quality, and there are 5 faults. तो निमाय ने कहा कि ये जो विशेष श्लोक हैं, इस श्लोक में 5 अलंकार हैं और उसमें 5 त्रुटि है।
And then went on to describe the ornaments and the faults. और फिर निमाई वर्णन करने लगे कि उस 5 अलंकार के बारे में और उसमें जो 5 दोष है उसके बारे में. So Nimai Pandit's students, they were laughing. They were thinking, oh, our teacher is one. और फिर निमाई के जो छात्र लोग थे हैं और वो लोग बहुत आनंदित हो गए और वो हंसने लगे और आनंद करने लगे कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, वो जीत गए. It was quite an embarrassment for Keshav Kashmiri. तो ये केशव काश्मीरी के लिए बहुत क्या कहते हैं, लज्जा की विषय था. So that night, Keshava Kashmiri went. He prayed to Mother Saraswati. He said, "Have I offended you? I must have done something to make you angry. You let this young boy defeat me today." तो जब केशव काश्मीरी घर वापस गए तो बहुत ही दुखी था और वो अपने जो इष्ट देव है, देवी है सरस्वती के पास गए और वो बोलने लगे, क्या मैं आपके चरण में कुछ अपराध किया, क्या मैंने आपको गुस्सा किया जिसके कारण एक छोटा बालक के पास मैं परास्त हो गया. I conquered everywhere before I defeated so many great pundits, and this young teenage boy, he defeated me. तो मैंने बहुत लोगों को परास्त किया हूँ, लेकिन आज मैं एक बालक के पास परास्त हो गया. So I must have offended you. You've not given me any blessing. शायद मैं जरूर आपके चरणों में अपराध किया और जिसके कारण आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं हुआ. But Mother Saraswati told him that no, you don't know the identity of this boy. He is no ordinary boy. He is my Lord and Master. तो तब मदर सरस्वती जो है, माता सरस्वती ने कहा कि ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है जिनके पास आप गए थे. ये और कोई नहीं है, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं. So that next morning, Keshava Kashmiri came and he submitted himself to the lotus feet of Nimai Pandit. तो अगले दिन सुबह केशव काश्मीरी आए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और उन्होंने उन महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया. And in this way, by the mercy of the goddess Saraswati, this Keshava Kashmiri became a devotee. और इस प्रकार सरस्वती माता के आशीर्वाद से केशव काश्मीरी जो पंडित था वो वैष्णव बन गए. Of course, he joined another sampradaya, हालांकि उन्होंने दूसरे एक संप्रदाय से जुड़े, but became a devotee. लेकिन वो भक्त बने. So the goddess of learning, Saraswati, she brought this one devotee. तो जो सरस्वती माता जो विद्या की देवी है, उन्होंने एक भक्त तैयार किया. And the goddess of fortune is Lakshmi. She's the wife of Chaitanya Mahaprabhu. और जो लक्ष्मी के देवी है, लक्ष्मी देवी, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है. She's worshipping him at home. और वो उनकी आराधना कर रहे हैं अपने घर में. So both the goddess of learning and the goddess of wealth, Lakshmi, they're both worshipping Nimai Pandit. तो इस प्रकार जो विद्या के देवी हैं सरस्वती और जो ऐश्वर्य के लक्ष्मी के देवी है लक्ष्मी, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर रहे हैं. Chaitanya Mahaprabhu is the Lord of both Saraswati and Lakshmi. और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो दोनों के ही भगवान है, सरस्वती और लक्ष्मी. That's why we offer our obeisances. तो इसलिए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं. Sometimes difficult for people to understand why we worship Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं क्यों हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं. But Mahaprabhu, he is the Supreme Lord. He is the Lord of the three worlds.
लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो त्रिजगत के स्वामी हैं। Just like Lord Krishna, at the age of 11, he went to Mathura to deal with Kamsa, to kill Kamsa, and to free Vasudeva and Devaki from prison. ठीक जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस से मिले थे देवकी और वसुदेव को उद्धार करने के लिए। So Lord Chaitanya Mahaprabhu, at the age of 11, he began to teach students. उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु 11 साल की उम्र में वो इस आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे सबको। He opened his own school, began to teach. और उन्होंने अपना खुद का एक टोल स्कूल खोला। And when he became a teacher, many students came to him. और जब वो शिक्षक गुरु बने तब बहुत लोग उनके पास आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। And they were all astonished to hear how he could explain और logic to them. वो सब लोग आश्चर्यचकित रहते थे, कैसे निमाई इतना सुंदर व्याख्या कर सकते हैं। And he would, anybody, scholars would come, they would argue with him, and they would be all defeated. और जो भी पंडित लोग आते थे निमाई के साथ तर्क करने के लिए, निमाई उन सभी को परास्त कर देते थे। But when Lord Chaitanya would defeat them by his gentle behavior, no one felt unhappy. तो जब वो लोग परास्त हो जाते थे महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु के सुंदर नरम व्यवहार से उनको कभी ऐसा दुख नहीं होता था कि वो हार गया। So this is the real teacher, you see. तो ये है असली शिक्षक, The gentle in behavior, not proud. तो जो उनके व्यवहार में बहुत ही विनयी है, अहंकार शून्य है। So Chaitanya Mahaprabhu and all of his devotees, they can defeat all kinds of scientists and philosophers. तो श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी जो लोग हैं, वो सभी प्रकार के वैज्ञानिक और पंडित लोगों को परास्त कर सकते हैं। Our real business is to introduce everyone to the chanting of the holy name. तो हमारा जो असली उद्देश्य है, ये है सभी व्यक्तियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र की जप और कीर्तन में नियुक्त करें। We're not interested in just arguing with people. तो हम लोग सबके साथ केवल तर्क करने के लिए उत्साहित नहीं है। Right? The real mission of Chaitanya Mahaprabhu and his devotees is to introduce people to Sankirtan. तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का असली जो उद्देश्य है कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन में नियुक्त करे। The Kali Yuga Dharma Hari Nam Sankirtan. तो कली युग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन है। So Lord Chaitanya attracted many students. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे जो छात्र हैं उनको आकर्षित किए थे, And they like to study under him. और वो लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में वो अध्ययन करना चाह रहे थे। So Mahaprabhu wanted to introduce Sankirtan to everyone. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन के द्वारा सबको आकर्षित करना चाह रहे थे, Because that will give people the real peace of mind. क्योंकि वही सबको असली शांति और जीवन प्रदान कर सकता The है। goal of life comes by chanting the holy name. तो जीवन का परम जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के द्वारा। So do you have any questions? ओके, अगर आपको कुछ प्रश्न हैं तो हम लोग प्रश्न लेंगे। We were having many questions in Parikrama. तो परिक्रमा में है बहुत सारे प्रश्न उत्तर वहाँ पर हो रहा था। I had a big list, so many questions. तो हमारे पास बहुत प्रश्न का एक लिस्ट था जहाँ से हम लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। I know I have a lot of questions. तो मेरे को याद है मेरा बहुत सारा प्रश्न था।
I have more questions now than I had in the beginning. तो When I first became a devotee, I did not have many questions. तो जब मैं भक्ति के शुरुआत के दिनों में था तब मेरा ज्यादा प्रश्न नहीं था, But now I have a lot of questions. लेकिन अभी मेरा बहुत सारा प्रश्न है। So I'm sure you also have questions. तो मेरे को लगता है कि आप लोग भी बहुत सारा प्रश्न होगा। तो आप लोग मेरे को प्रश्न भेज सकते हैं व्हाट्सएप करके। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आशीषानंद प्रभु को भेज सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में प्रश्न को लिया जाएगा। पिछले क्लास में जो लोग प्रश्न दिए थे आपका आंसर नहीं मिला, उसको फिर से भेजिए। हम लोग first question is how to initially stop us completely from getting trapped into Maya or some sense gratification things. Sometimes we do not get enough strength for it, even we are chanting our rounds completely. तो प्रश्न है कि बहुत बार हम लोग माया में फंस जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कैसे हम माया में फंस गए हैं। तो बहुत बार हमें माया से हमारे पास उतना शक्ति नहीं होता है कि माया से लड़ाई करने के लिए, मतलब अपना माला कंप्लीट करने के बाद भी माया से लड़ाई करने के लिए उतना शक्ति हमारे पास नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? Well, one of the problems is some people are not afraid of Maya. तो एक समस्या है भक्तों का कि वो माया को एकदम ही डरते नहीं है। You know, we think, oh, it's Maya. You know, we're thinking it's more enjoyment. तो वो सोचते हैं, बहुत बार भक्त लोग सोचते हैं, ओ माया हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत इसमें आनंद कर सकते हैं। So Srila Prabhupada noted that. He saw that the trouble, my disciples, he said, that they're not afraid enough of Maya. तो श्रील प्रभुपाद इसको समझ पाए थे और समझ पाए थे कि मेरे शिष्य का एक त्रुटि है, शिष्य लोगों का एक त्रुटि है, वो माया को डरते नहीं है। Yeah, we have to be very careful. तो हमें माया के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। So you see, when we see Maya, when we see the opportunity for sense gratification coming, then you have to check your mind and senses. तो जब माया हमें आकर्षित करता है और बहुत सारे प्रकार के इंद्रिय भोग के बारे में हमें प्रलोभित करते हैं या प्रदान करते हैं, तब हमें विचार करना चाहिए हमारे मन और बुद्धि में क्या चल रहा है, हमें इंद्रियों पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर। Maya is always going to be there. तो माया हमेशा रहेगी। If you want Maya, you'll get it. It's not difficult to find it. तो अगर आप माया से मिलना चाहते हैं तो बहुत आसानी से माया आपके साथ मुलाकात करेगी। Opportunity for sense gratification is there all the time. तो इंद्रिय भोग की सुविधा हमेशा रहेगी, मतलब आएगा। But we have to understand that leads to so many troubles. लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट क्या है, उसके कारण हमें बहुत प्रकार के दुख भुगतना पड़ेगा। We have to understand the nature of the material energy. तो हमें ये जो जड़ा प्रकृति है उसकी स्वभाव हमें समझना पड़ेगा। That it looks attractive. दिखने में बहुत अच्छा लगता है। Oh, it looks very nice. दिखने में बहुत सुंदर लगता है। But it can give so much pain. लेकिन आपको बहुत दुख मिलेगा। It can lead to so much trouble. और ये आपको बहुत समस्या में फंसा देगा।
Just like they make the night lights, you know, on the Ganga, they put the boats with the lights, and it looks very nice. जैसे गंगा में बहुत सारे प्रकार के बोट रहता है और उसमें बहुत सारा लाइट लगा हुआ रहता है रात को. So we're thinking, oh, it looks very beautiful, oh, very nice. But there's so much danger there. तो हम लोग को लगता है कि बहुत सुंदर है, हाँ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे संकट है, विपद है. Just like they put the neon signs outside the bar, outside the club, they're putting the lights and they put the signs and they put pictures and it looks like, oh, looks, there's enjoyment there. तो ठीक जैसे बहुत सारे प्रकार के रेस्टोरेंट और बार है जहाँ पर हाँ रात को बहुत सारे प्रकार के लाइट लगाया जाता है और बहुत प्रकार के फोटो लगाया जाता है और जिसको देख के लगता है कि ओ यहाँ पर बहुत प्रकार के आनंद है. But there's so much trouble there also. लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के व्यभिचार और दुख है. So you're trying to avoid Maya. You have to cultivate proper intelligence. तो अगर आप माया से बचना चाहते हैं, माया से दूर रहना चाहते हैं, तो आपकी बुद्धि को शक्तिशाली करना पड़ेगा. You have to have sharp intelligence. तो आपको तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए. And not allow yourself to become a victim. तो अपने आप को माया का शिकार बनने में मजबूर मत करिए. Just like people are doing things like taking drugs and alcohol and gambling. They're thinking, oh, it's fun. Oh, I will enjoy. तो ठीक जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दारू पी रहा हूँ, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ये आनंद है, आनंदमय जीवन है. But it leads to so much trouble. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के दुख है. The nature of happiness in the mode of passion, that it seems like nectar in the beginning, but quickly it becomes poison. तो रजो गुण के जो सुख है, इंद्रिय भोग की जो सुख है, ये शुरू में अमृत के जैसा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी वो विष में बदल जाता है. Okay. तो धन्यवाद. तो अभी दूसरा प्रश्न हम लोग लेंगे. When we go out to preach to others, how should we introduce them to the Hare Krishna Mahamantra and encourage them to chant? तो प्रश्न है, जब हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जाते हैं दूसरे के पास, तब उनको हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कैसे हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करें और उनको जप करने के लिए प्रेरणा दे, अनुप्राणित करें. Well, usually we have nice kirtan. The sweet sound of the kirtan can be attractive to people. तो साधारणतः जो कीर्तन है, सुंदर जो कीर्तन है, वो लोगों को आकर्षित करता है. And the mridanga playing, the nice mridanga playing, captivates the mind. और जो कीर्तन के साथ जो मृदंग बजता है, वो मन को आकर्षित करते हैं. When you're introducing people to the holy name, usually it comes with the kirtan. तो जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को लोगों के पास पहुंचाते हैं, साधारणतः हम लोग कीर्तन के रूप में उनके पास पहुंचाते हैं. Then we want to explain the nature of the Mahamantra, that this mantra can be chanted anytime, any place. तो फिर धीरे धीरे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जो स्वभाव है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो लाभ है, वो हम लोग लोगों को समझाते हैं
और फिर बताते गए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति कर सकता है and it can be chanted by anyone. और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है किसी भी समय There's no qualification. और इसके लिए कोई योग्यता का जरूरत नहीं है But by chanting, one can get the greatest pleasure, the greatest transcendental experience. तो हरिनाम जप करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते हैं And so we explain to people the general nature, the Mahamantra. तो हम लोग हरिनाम का जो स्वाभाविक जो स्वभाव मतलब गुण है वो लोगों के पास हम लोग बताते हैं It's very simple, but it's very sublime. तो ये बहुत सरल है लेकिन बहुत ही विशेष है And it's very powerful. और ये बहुत शक्तिशाली है So, like that, we introduce people to the holy name. तो इस प्रकार हमें हरिनाम को लोगों के पास इंट्रोड्यूस करना चाहिए Mantra meditation. महामंत्र मेडिटेशन के रूप में Powerful sound vibration coming from the spiritual world. तो जो आध्यात्मिक शब्द तरंग है जो आध्यात्मिक जगत से आ रही है And by chanting, people can experience the presence of Krishna. तो इस जप करने के द्वारा लोग भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं Okay. So, Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. But as we know that committing sin on the strength of the holy name is an offense. But Maharaj, on a mental level, we do break regulative principles. For example, watching movies, etc. In short, nowadays we have got addicted to mobile phones, thus breaking a regulative principle which is intoxication. And then completing 16 rounds and following 4 regs on gross level. How can we stop committing sin on the strength of holy name on a subtle level? And what happens when we break it on subtle level? तो प्रश्न है कि 10 नाम अपराध में एक अपराध है नाम के बल पर पाप आचरण करना। तो महाराज बहुत बार हम लोग मानसिक स्तर पर हम लोग 4 नियम को तोड़ते हैं जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं मूवी देखते हैं और फिर आजकल मोबाइल फोन में हम लोग इतना आसक्त हो गए हैं ये एक नशा के जैसा हो गया है और जहाँ पर हम लोग अलग अलग शॉर्ट्स देखते रहते हैं तो इस प्रकार मानसिक स्तर पे सूक्ष्म स्तर पे हमारे जो 4 नियम है वो टूट जाता है तो और हम लोग 16 माला जप और 4 नियमों का पालन जो है वो मतलब बाह्यिक स्तर पर बाहरी स्तर पर कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है महाराज कैसे हम लोग इस सूक्ष्म स्तर पे 4 नियम को जो तोड़ रहे हैं उससे हम लोग बच सकते हैं और अगर होता है तो उसका नुकसान क्या है? Well, you don't get reactions for offenses on the subtle level in the Kali Yuga. तो कली युग में अगर कोई व्यक्ति सूक्ष्म स्तर मतलब मानसिक रूप से अगर उनको अपराध होता है तो उसका फल नहीं होता है। But if you keep these desires in the subtle level, gradually they will become gross. लेकिन अगर आप इस अपराध को या जो नियम टूट रहा है उसको मानसिक स्तर पर करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो वास्तविक स्तर पर आ जाएगा। And when it becomes gross, then you're going to get reactions. और जब आप उसको वास्तविक रूप से करेंगे तब उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। So thoughts may come in the mind on the subtle level. You have to get rid of them. तो सूक्ष्म स्तर पर मानसिक मन में ये सारे विचार आ सकता है लेकिन आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा इसे बाहर निकालने के लिए। And if you don't get rid of them, they'll remain in the mind, and one day they'll manifest as gross activity. और अगर ये मन पे चलता रहा एक दिन वास्तविक रूप से बाहर में वो निकल जाएगा। Then you get trouble.
और तब क्या होगा, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। Next question, Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. My question is that if we are very busy in our material duties due to office working hours, we sleep late at night and are unable to wake up in the morning. So chanting cannot be done in Brahma Muhurta. We do 4 or 5 rounds at home and remaining we have to chant on the way. So do we committing नाम अपराध by doing this? प्रश्न है कि महाराज अगर हम लोग हमारे भौतिक कर्तव्य में बहुत व्यस्त रहते हैं और उसके कारण हम लोग बहुत देर लेट रात को मतलब सोते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं और उसके कारण केवल सुबह 4-5 माला हो पाता है, बाकी सारा माला रास्ते में होता है जाने आने के समय। तो क्या इससे नाम अपराध हो रहा है? कैसे हम लोग इस पर कार्य कर सकते हैं, कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं? Is it a नाम अपराध? No, it's not Namapara. We should always chant the holy name. तो ये नाम अपराध नहीं है, आप हमेशा हरि नाम कर सकते हैं। So you're moving. Yeah, you chant 4 or 5 rounds at home. The rest of the rounds are chanted on the way to work and coming home from work, and in the course of the day. Yeah. We understand you're working, so you need time to chant. There are no rules in chanting. You could chant in the daytime, you could chant in the night. The main thing is in the course of the day, you finish the 16 rounds. तो हमें समझ में आ रहा है कि आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, और आप सुबह 5-6 माला ही कर पा रहे हैं और बाकी सब माला जाने के समय आने के समय हो रहा है। तो इसमें नाम अपराध नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपना जो 16 माला का जो जप है वो आप समाप्त कर रहे हैं। Generally, the quality is better if you chant in the early morning. तो सबसे अच्छा है अगर आप अपना 16 माला का जप सुबह कर सकते हैं। But it's not essential. You can chant any time. लेकिन यही अल्टीमेट रूल नहीं है, आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। So you're sleeping late, getting up late. That's not a very good program. तो जब आप लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। You need to try to get up earlier in the morning. तो हमें प्रयास करना चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए। You need to try sleeping earlier. और हमें जल्दी सोने के लिए प्रयास करना चाहिए। And then you can give more time for chanting in the early morning. और फिर तब क्या होगा, आपको सुबह जप करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। But it's not necessarily true for everybody like that. लेकिन ये सबके लिए समान क्या कहते क्या बाध्यतामूलक नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। The main thing is you do 16 rounds in the day. लेकिन मुख्य नियम है कि आप पूरे दिन में कम से कम 16 माला का जप करिए। Okay. So next question, Hare Krishna Dandavat Pranam Maharaj. In our day-to-day life, we face different problems, which can be material or spiritual, which can be material or problems facing in our spiritual advancement. Should we seek help from Lord Krishna for our material problems? Is it right to approach Lord with material problems? What is the meaning of अभ्यास अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन in this regard? तो प्रश्न है महाराज, हमारे जीवन में 2 प्रकार की समस्या आता है। एक होता है हमारे भौतिक समस्या और दूसरा है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, वो एक समस्या है।
तो क्या महाराज जब हमारे भौतिक जीवन के समस्या के लिए क्या हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं, ये क्या सही है? तो अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन, तो कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, इसका असली अर्थ क्या है? Well, it's not wrong to approach Krishna. It's not pure devotion, but it's not wrong. It's better to approach Krishna than to approach some other deva. तो ये गलत नहीं है भौतिक समस्या के लिए कृष्ण के पास जाना, हालांकि शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं है। ये ज्यादा अच्छा है कि अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या है, उसके लिए हम भगवान के पास जा रहे हैं और किसी देवी देवता के पास नहीं। Krishna is the supreme controller. तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। So in Bhagavad Gita, Krishna describes how people come and surrender to him for different reasons. तो भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कारण से उनके पास आते हैं। Chaturvidat Ujantimam Jnana Sukritino Arjuna Arto Jignasur Artharti Jnani Cha Bharadashava. 4 reasons why people come. People come in distress, some come in search of wealth, some are curious, some want knowledge. They're all good people. They come to Krishna. तो 4 प्रकार के सुकृतिवान व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो 4 प्रकार है। आर्त जो दुख पा रहे हैं, अर्थार्थी जो धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, और एक है जिज्ञासु जो ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी और जो ज्ञानी है। 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। So they're all good people who come to Krishna. ये सभी सुकृतिवान है क्योंकि वो भगवान की शरण लिए है। Of course, they have some reasons why they're coming. हालांकि उनका कुछ कारण है जो भौतिक है। So they're not pure devotees, but they're mixed devotees. तो वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो मिश्र भक्त है। Okay. तो ठीक है। Next question. Sometimes a difficult time, we won't be able to understand how Krishna is protecting us or why Krishna is doing so. Since we are not so much surrendered soul, that time some people advise to worship demigods and even worship demigods that time can give us quick relief from the situation. In such case, can we worship demigods? तो प्रश्न है कि बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारे कठिन समस्या का सामना करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि कृष्ण कैसे सुरक्षा कर रहे हैं हमारा, या कृष्ण क्यों हमारे जीवन में ऐसा कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग संपूर्ण शरणागत नहीं हैं, तो इसलिए बहुत बार कभी कभी लोग ऐसे सलाह देते हैं कि आप देवी देवता की पूजा करिए, उससे क्विक रिलीफ मिलेगा। तो क्या हम लोग ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग डेमीगॉड वर्शिप कर सकते हैं? Well, we don't encourage people to worship demigods, no. तो हम लोग लोगों को देवी देवता की पूजा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते हैं। You have to worship Krishna. आपको कृष्ण की शरण लेना पड़ेगा। Akama sarva kamo va moksha kama udaridi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. In Srimad Bhagavatam, 2nd canto, it is described there that there are many different devas you can worship for material reasons, but ultimately you have to worship Krishna.
तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में जो महाराज ने श्लोक बताया कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम व उदारधि, तो वहाँ पर वर्णन किया गया है कि ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा आप कर सकते हैं भौतिक लाभ के लिए, लेकिन किया जाता है भौतिक लाभ के लिए, लेकिन अंत में भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनका ही शरण लेना चाहिए। In Bhagavad Gita, Krishna said people who worship other gods are less intelligent, and the results of their worship will be limited and temporary. तो भगवत गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं जो देवी देवता की उपासक हैं वो कम बुद्धिमान है, और देवी देवता का जो पूजा का जो प्राप्त जो फल है वो सीमित है और वो अनित्य भी है। Antavattu phalam tesham tadbhavati alpamedasham divam dimam yajoyanti madbhaktayanti mamapi. You worship the demigods, you go to the demigods. You worship Krishna, you go to Krishna. तो गीता में भगवान बताते हैं कि अगर आप देवी देवता की पूजा करेंगे तो आप देवलोक जाएंगे, और अगर आप मेरी आराधना करेंगे तो मेरे धाम में वापस आ जाएंगे। So you go to the demigod, means you stay in the material world. तो अगर आप देवी देवता की पूजा करेंगे इसका मतलब है आप भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। You get results, but temporary, very limited results. आप फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका फल बहुत ही सीमित होगा और उसका अंत भी हो जाएगा। Okay? ठीक है। अब सबको अच्छा लग रहा है? So we have one more program with Maharaj on Sunday in Belgacia. There's two questions. I'll read the two questions. You can answer in one time. So one question is similar question, Maharaj. Little bit. Maharaj, my question is: as we are in material body, so we have to perform our material duties. But in my workplace, I feel there is everything so materialistic. In that situation, how to connect myself with Krishna consciousness? तो प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है, माता जी का प्रश्न है कि महाराज, we perform our material duties. Okay, one question at a time. Yeah. So प्रश्न है कि महाराज, जब हम लोग भौतिक शरीर में हैं तो हमें कुछ भौतिक कर्तव्य पालन करना पड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं बाहर जाके तो वहाँ पर वातावरण बहुत भौतिक है। उस अवस्था में हम लोग कृष्ण के साथ कैसे याद करें? Well, it's all Krishna's energy. Wherever you are in the world, you have to see everything in connection to Krishna. तो इस दुनिया में जो भी
जो भी चीज है वो सब कुछ कृष्ण की शक्ति है। इस One- प्रकार आपको सब कुछ कृष्ण के साथ संपर्कित होकर देखना पड़ेगा। If you're surrendered to Krishna, then there's no difference between heaven and hell or liberation. तो अगर आप कृष्ण के प्रति समर्पित हैं तो आपके लिए स्वर्ग नरक के बीच में कोई फर्क नहीं है। So factory is hell. तो जो कारखाना है वो नरक के जैसा है। In fact, the Prabhupada said another name for hell is factory. तो जो कारखाना है कारखाना है जो वो एक उसका और दूसरा नाम है नरक। Right? If you worked in the factory, you know how hellish it is. तो अगर आप किसी कारखाना में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो उसकी परिस्थिति किस प्रकार है। But if you're Krishna conscious, you can see Krishna everywhere. लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामय हैं तो वहां पर भी आप कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। So you have to have sadhana, you have to chant, you have to hear regularly. इसलिए आपका साधना अच्छा होना पड़ेगा, आपको नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। And then wherever you go, you can be Krishna conscious. और तब जब आप बाहर जाएंगे तब जहां पर आप रहेंगे वहां पर आप कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। With Chitraketu got cursed to become Vritasura. तो चित्रकेतु महाराज को शाप मिला था असुर बनने के लिए। So he was in the body of a big demon. तो वो असुर के शरीर एक बहुत बड़ा असुर के शरीर में थे। But he was Krishna conscious. लेकिन उस अवस्था में भी वो कृष्ण भावनामय थे। He didn't forget Krishna. उन्होंने कृष्ण को भूला नहीं। So if you're working in a difficult situation, then you have to give more attention to your sadhana so that you can remember Krishna. तो अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं तो आपको अपने साधना पर बल देना पड़ेगा। You have to be very strict and chant very regularly every day. तो आपको बहुत दृढ़ होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपका जप के लिए और आपका साधना के लिए नियमित रूप से। And you have to hear about Krishna. और आपको कृष्ण के बारे में सुनना पड़ेगा। Now sometimes, even in the fact you can get a headset, get some earphones and be hearing kirtan or be hearing prachar. तो कभी कभी शायद आप कान में हेडफोन लगा लिए हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं और आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं। You have to make use of all the technology to keep yourself hearing and chanting. तो आपको इस जितने भी जो टेक्नोलॉजी है, प्रजुक्ति है, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा कृष्ण कथा सुनने के लिए। Like you've all got a mobile phone. तो आप सबके पास मोबाइल फोन है, So use your mobile phone to remember Krishna. तो मोबाइल फोन का व्यवहार करिए कृष्ण का स्मरण करने के लिए। Right? Copy the slokas and look at different slokas and recite slokas. तो जो अलग अलग जो श्लोक हैं उसको मोबाइल में सेव करिए और उसको याद करिए। Recite, sing the bhajans which we sing. और अलग अलग प्रकार के जो कीर्तन है, भजन है, उसको गाइए। Take advantage wherever you are to be Krishna conscious. तो उसका लाभ उठाइए, जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से लाभ उठाइए कृष्ण भावना का। You can do it और आप कर सकते हैं ये। if you're serious. You have to. अगर आप बहुत निष्ठावान हैं तो आप जरूर इसको कर सकते हैं। Okay. Last question. Okay, last question. So last question. This question is in Bengali. হরে কৃষ্ণ মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম। আমার প্রশ্ন, সংসারে এমন কিছু ডিউটি থাকে যেগুলো করতে গিয়ে ভক্তিতে অগ্রসর হতে সমস্যা হয়, দুদিকে সমতা রক্ষা কি করে করব? So দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ, my question is that in my family life there is some duty, by doing those there is a difficulty to progress in my spiritual path. So how to balance in
in both the things. Both in the material and the spiritual, you have to balance. Yes. Just like the train goes on two tracks, you have to be level. तो जैसे ट्रेन दो पटरी पर चलता है, उसी प्रकार आपको भी आपके आध्यात्मिक जीवन और भौतिक कर्तव्य दोनों में आपको संतुलन रखना पड़ेगा. If you're not level, train turns over. तो अगर ट्रेन दो पटरी पर नहीं चलता है तो वो गिर जाता है. So if you're too much on the material, no spiritual, then you get problems. तो अगर आप बहुत ज्यादा भौतिक कर्तव्य में हैं और आपके आध्यात्मिक जीवन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आप बहुत समस्या में पड़ने वाले हैं. And if you try to go too quickly onto the spiritual without material, neglect the material, then you also get problems. और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे बाहरी रूप से, और आपने अपना भौतिक कर्तव्यों का सही तरीके से देखरेख नहीं किया, तब भी आप समस्या में पड़ सकते हैं. So you have to balance the two. तो आपको दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा. And you have to have a job, you have to work, or you do some means to generate your income. तो अगर आप गृहस्थ हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा और आपको पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा. At the same time, you have to practice spiritual life. और उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक जीवन का You have अनुशीलन to भी करना पड़ेगा. make some arrangements every morning for hearing, chanting. Every morning to do chanting. Make an arrangement to chant every morning. और हर दिन सुबह आपको जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए सब कुछ का आयोजन करना पड़ेगा. You have to organize your life so that you have time to do spiritual and material. तो आपके जीवन इस प्रकार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि आप अपना आध्यात्मिक जीवन का भी पालन कर रहे हैं और अपना भौतिक कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं. So it takes some intelligence. तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बुद्धि होना चाहिए. Make proper use of the time. तो समय का सदुपयोग करिए, Not just only material. केवल भौतिक कर्तव्य ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन के लिए समय का सदुपयोग करिए. Okay. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. हम लोग धन्यवाद देते हैं महाराज को. और बहुत समय